Hello, everyone, and welcome back to Lit Up with Annie. Those of you who don't know yet about Speak Up with Annie, please go and search Speak Up with Annie. This is another sister channel to Lit Up with Annie, in which we are going to talk all about communication and improving our speaking skills, English speaking skills, vocabulary, and there's no end. So please go and check that out. Speak Up with Annie. Apart from that, if you're preparing for NET, UPPSC or JKPSC, I have full courses for UPPSC and NET. You can join that. JKPSC, I have JKPSC 10 plus 2 lecturer. I have MCQs. MCQs for everybody basically. And again, those of you who don't know about my tests website, again, go and check that out. The link to that website will be there in the description box. Some of the tests are there for free also, and a few PYQs I've added. You can check that. तो इसमें उसमें बहुत अच्छा एक इंटरफेस हमने बनाया है which copies the real exam style, online जो exam होता है. Now we have also introduced negative marking in that. So tests like UPPSC and JKPSC have negative marking. So you will get a very good experience of that. ठीक है? Now coming to today's lecture. Today we are going to talk about Jacques Derrida. Jacques Derrida's very, very important essay, which is Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences. Whatever theory Derrida की हम पढ़ते हैं deconstruction में, all of that important, many of the important concepts he had given in this essay. Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences. Let me take you to the original. This is the original text. ठीक है, structure, sign and play in the discourse of the human sciences. It's easily available. If you want, if you have time, please go through the entire essay. That's it. Here, I'm going to give you a good detailed summary of it and what is there in this. Okay. सबसे पहले तो it's very important to know that where it was published, when it was delivered, and whatever. So it was delivered in 1966. John Hopkins University में, Baltimore में. What was the occasion? It was international colloquium था एक वहाँ पे. The language of criticism and the sciences of man. इस पे. This is where Derrida delivered his essay. So this conference, it introduced structuralism to American academia. Before Derrida, structuralism was very much prevalent. All the theories of structuralism were very much prevalent. थोड़े दिन पहले मैंने structuralism का एक आपको शेयर किया था to revise. So if you've not seen that, structuralism देखिए पहले, ठीक है? क्योंकि Saussure से सारा बेस सेटअप होता है. So this conference introduced structuralism to American academia. जैसे कि बहुत सारे thinkers थे जो structuralism में अपनी थ्योरीज की बात कर रहे थे, जैसे रोलां बार्थ्स थे, जाक लाकान थे. लाकान इज स्ट्रक्चरलिस्ट साइको एनालिस्ट. तो साइको एनालिसिस में उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की हेल्प लेके अपनी थ्योरीज दी हैं. क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, हु वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट by profession, but then he also turned to Saussure and took his theories and applied it to anthropology. So वहाँ से इन्होंने शुरू किया स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी का एक पूरा डिसिप्लिन शुरू किया. So structuralism was being discussed everywhere, right? Now came this young, relatively unknown French philosopher उसी टाइम पे, और डेरिडा ने आके अपनी बात कही स्ट्रक्चर पे, साइन पे और डिस्कोर्स पे. एंड जो इन्होंने बातें कही, इट शॉक्ड द ऑडियंस एंड इट मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म. कि इट्स टाइम कि अब हम मूव ऑन करें स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी से टू व्हाट केम टू बी नोन एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. तो यहाँ से शुरुआत हुई पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की. सो स्ट्रक्चरलिज्म डोमिनेटेड इन द मिड 20th century, स्पेशली लिंग्विस्टिक्स जो सॉसियोर का था, एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रॉस का था, और लिटरेरी थ्योरी. अब स्ट्रक्चरलिज्म में उन्होंने आर्ग्यू किया जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशंस, और यही रिलेशंस गवर्न करते हैं कि क्या मतलब निकलेगा कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर, सब चीज़ों का. जैसे कि इन्होंने कहा था
we can't understand a word in isolation. We have to see it in relation to the other word. जैसे बाइनरीज का कॉन्सेप्ट आया, नाइट इज नाइट बिकॉज देर इज अ डे. सो रिलेशन हम लोग देखते हैं वर्ड्स का. कैट इज अ कैट बिकॉज इट इज नॉट अ बैट, राइट? सो देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ the relationship of difference is there, that night is night because it is not day, it is different from day. Cat is cat because it is different from bat, hat, sat, all the other words. So the relationship of difference is there. Saussure, right? That governs meaning even in the context, culture, human behavior. Derrida was influenced by phenomenology. ठीक है? And particularly by a few philosophers like Husserl, Heidegger, Nietzsche, all the major names. Heidegger का जो critique था metaphysics का, Nietzsche का suspicion of stable truth. What is truth? Truth can't be stable, right? My truth is different, your truth might be different. तो Nietzsche ने इसकी बात की थी. All of these things challenged this stable center in structures. Structure में, structuralism में एक center का concept था ना, उसमें एक stability का concept था, meaning being stable. लेकिन post structuralism या deconstruction इस चीज़ को challenge करते हैं कि कोई भी चीज़ stable नहीं है. आप उस सारी चीज़ों को deconstruct कर सकते हो, destabilize कर सकते हो, because multiple readers, multiple meanings. This was also the moment when the linguistic turn in philosophy and criticism was at its peak, meaning everything was being understood as a system of sign. Signifier, signified. Signifier plus signified becomes a sign. तो हर एक चीज़ जो है वो इसी तरीके से समझी जा रही थी. Derrida enters this space और वो पूछते हैं, what if the very concept of structure is unstable? क्या करेंगे कि ये स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट ही अगर अनस्टेबल हो? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ को आप स्ट्रक्चर ले लो. बिल्डिंग भी एक स्ट्रक्चर है, लिटरेचर अपने आप में एक स्ट्रक्चर है. उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जैसे पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन. तो लिटरेचर यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया. बिल्डिंग में छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीमेंट, ब्रिक्स, वाटर, टाइल्स एट्सेट्रा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स. What if the very concept of this structure is unstable? Well, so this essay, it marks the birth of deconstruction. Now what he's going to do is he's going to deconstruct all of these structures and he's going to say that, see, there are contradictions in it. Though Derrida does not use the term here. यहाँ पे deconstruction term को इन्होंने use नहीं किया है. The thinking that underpins deconstruction begins in this essay. ठीक है, जो एक background है या जो thought process है वो यहाँ से शुरू हो जाता है. And it changes the way we think about knowledge, about meaning, about language, literature, culture. हर एक चीज़ के बारे में जो सोच थी वो change होने लगती है. It also begins the decentering of the human subject, an idea that later becomes very important and central to postmodern and post-structuralist theory. अब देखते हैं इस essay के बारे में. So सबसे पहले है the event और rupture. Derrida सबसे पहले शुरू करते हैं by suggesting that perhaps something has occurred in the history of the concept of structure, an event that makes us rethink what a structure is. कि कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हिस्ट्री में हुआ है स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में कि इट मेक्स अस रीथिंक कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है. अ स्ट्रक्चर हैज़ ऑलवेज इम्प्लाइड ऑर्डर, है ना. स्ट्रक्चर कर दो, इसको ऑर्गेनाइज कर दो, जिससे हम समझते हैं कि शायद एक ऑर्डरली हम वे में उसको रखें, एक कोहेरेंस है, एक सेंटर है दैट ग्राउंड्स इट. बट नाउ समथिंग हैज़ हैपेंड. वी आर बिगिनिंग टू थिंक ऑफ अ स्ट्रक्चर विदाउट अज्यूमिंग अ स्टेबल सेंटर. अब लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में आप सेम तरह से नहीं सोच रहे, तो कुछ तो हुआ है. फिर इसके बारे में भी मैं फिर से पूरे ऐसे में के बारे में डिटेल में बताऊंगी. पहले लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, ओवरव्यू दे देती हूँ. फिर है पैराडॉक्स ऑफ द सेंटर. एवरी स्ट्रक्चर ट्रेडिशनली हैज़ अ सेंटर.
एक फिक्स्ड पॉइंट होता है ना जो एंकर करता है स्ट्रक्चर को पूरे को और लिमिट करता है उसके एलिमेंट्स के प्ले को। लेकिन सेंटर भी एक पैराडॉक्स है, वो कहते हैं इट इज़ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्ट्रक्चर, इट बिलोंग्स टू बट इट ऑल्सो रेगुलेट्स द स्ट्रक्चर। तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देता है बिकॉज इट स्टॉप्स द फ्री मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स फ्रीली नहीं उस स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग वो फ्रीली नहीं मूव कर सकते। इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी बट दैट स्टेबिलिटी इज ओनली एन इल्यूजन। तो डेरिडा कहते हैं कि जो सेंटर है ना इट ऑलवेज हैज़ बीन थॉट ऑफ एज द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ philosophy is the history of substitutions of one center for another. Once again, Derrida says that center has always been thought of as the origin. कि ये शायद कोई सेंटर, जैसे अगर हम वर्ल्ड की भी बात एक स्ट्रक्चर में करें, पूरा एक वर्ल्ड एक स्ट्रक्चर है, उसके एलिमेंट्स ये सारी कंट्रीज़ हैं, तो अगर हम बात करें सेंटर की तो हम कहेंगे गॉड ने इसको क्रिएट किया, वो इसका ओरिजिन है। और हिस्ट्री, फिलॉसफी की जो हिस्ट्री है इज़ ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ सब्सटीट्यूशंस ऑफ वन सेंटर फॉर अनदर। फॉर एग्जाम्पल गॉड के बारे में बात करते हैं, फिर रीज़न की बात आ जाती है, फिर मैन, फिर साइंस। सब्सटीट्यूशंस हैज़ ऑलवेज बीन देयर। उसके बाद इन्होंने बात की है द स्ट्रक्चरैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो डेरिडा कॉल्स अटेंशन टू द फैक्ट दैट वी have never truly thought about the structurality of structure. Structure के भी structure की बात, that is how structures themselves are structured, how the system itself is made possible. We have always focused on the center. हम हमेशा center फंसे रहता है इंसान, center की खोज में, knowledge की खोज में, है ना, logos की खोज में. We have always focused on that, not on the play of elements that make up the structure. When the center is questioned, structure reveals itself as a system of relations, a network without a single origin. Again, वर्ल्ड की अगर मैं बात कर लूँ, हम लोग हमेशा गॉड पे फोकस्ड रहते हैं, गॉड को खुश करना है, आफ्टर लाइफ, अगला जन्म, पिछला जन्म, एट्सेट्रा, ओरिजिन. We don't focus on the elements, on the people who make this world. अब जब सेंटर को क्वेश्चन किया जाता है, रीज़न आ गया, साइंस आ गया, गॉड को क्वेश्चन किया, तब जाके स्ट्रक्चर अपने आप को रिवील करता है एज अ सिस्टम ऑफ रिलेशंस, अ नेटवर्क जिसका कोई एक सिंगल ओरिजिन शायद है ही नहीं. आप कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोच सकते हो. फिर आती है रप्चर की बात, विच इज़ ओपनिंग ऑफ द फ्री प्ले, कि अब थोड़ा फिक्सडिटीज से हटो. जब सेंटर कैन नो लॉन्गर होल्ड और इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नॉट फिक्स्ड, जब ये समझ में आने लगता है कि चलो स्ट्रक्चर जो है या उसका जो सेंटर है वो फिक्स्ड नहीं है, तब एक रप्चर की शुरुआत होती है. तब सिस्टम ओपन्स टू फ्री प्ले. सेम बात है ना, अगर आपका व्हेन योर माइंड इज इन शैकल्स, जकड़ा हुआ है, तब आप सोच ही नहीं पाओगे उससे बाहर, एक दायरे से बाहर. लेकिन जब उसका रप्चर होता है तब जाके वो और चीज़ें आप अपने दिमाग में ला सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो. प्ले का मतलब क्या है यहाँ पे? प्ले हियर मीन्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंस. मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू रिलेशंस, substitutions and differences, not through a fixed origin. तो मीनिंग जो है वो फिक्स्ड ओरिजिन से नहीं आता है. मीनिंग हम अपने दिमाग में किसी चीज़ को समझते हैं दो अलग अलग चीज़ों को रिलेट करके या सब्स्टिट्यूट करके या उनका डिफरेंस पता करके. ये इन्होंने सॉसियर से लिया है. इन्होंने यहाँ पे सॉसियर ने कहा था कि मीनिंग इज़ प्रोड्यूस्ड because there is a relationship between different words. And what kind of relation is there? The relation of difference. Difference word का use किया था. Derrida ने absence word का use किया है because of absence of something. So free play is not chaos. It is openness and awareness that meaning is always in movement and meaning is never closed. Derrida कहते हैं this rupture marks the decentering of structure and thus of Western metaphysics. अच्छा, एक बात, अगर आप में से कोई ऐसा है
जो बिल्कुल पहली बार पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डेरिडा पढ़ रहा है, उनके लिए मैं एक और वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विच इज़ द बेसिक ऑफ डेरिडा की थ्योरी, बेसिक ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो बेस है पूरा, जो थ्योरी है पूरी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की. उसके बाद ये वाला ऐसे आपको और अच्छे से समझ आएगा. जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले, वो भी, उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार फिर से रिवाइज करें डेरिडा की थ्योरी को पूरी को. एंड देन ये पढ़ने के बाद टाइम, इफ़ यू नो, जैसे हम लोग यूपीपीएससी वालों के साथ दिन में मैं अभी तक मैक्सिमम 2 या 1 यूजुअली दे रही हूँ, एक राइटर. तो डेरिडा का अगर पूरा दिन मिलता है तो यू विल हैव टाइम टू रीड द इंटायर ऐसे. तो डेरिडा की पहले समराइज कोई अच्छी बुक से कर लो या मेरी वीडियो से कर लेना, फिर डू दिस वीडियो एंड देन गो ऑन टू रीड द ऐसे जो मैंने अभी शेयर किया था. तो डेरिडा क्या कहते हैं कि जो रप्चर आता है ना, यहाँ से शुरुआत होती है डीसेंटरिंग की. अब आपने सेंटर को हटा दिया, जो सेंटर जिसको हम फिक्स्ड मानते थे वो फिक्स्ड है ही नहीं. तो डीसेंटरिंग हो गया स्ट्रक्चर का, और यहाँ से शुरुआत होती है वेस्टर्न मेटाफिजिक्स की. क्रिटिक ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस. इन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा ना प्रेजेंस को इम्पॉर्टेंट मानते हैं. मतलब अगर ये वीडियो में मैं आपके सामने हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, एक ये वीडियो मैंने बनाया, दूसरा वीडियो में मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भेज दिए, आप ज़्यादा ट्रस्ट समहाउ मेरी वीडियो वाले नोट्स पे, लेक्चर पे करोगे, बिकॉज ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस. दैट समहाउ प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, स्पीकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन राइटिंग. राइटिंग को हम हमेशा सेकेंडरी मान देते हैं. उसको क्रिटिक किया. वेस्टर्न थॉट में अकॉर्डिंग टू डेरिडा उन्होंने हमेशा प्रेजेंस, ट्रूथ, ओरिजिन, यूनिटी, इन सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दिया है. दिस इज वॉट ही लेटर कॉल्स लोगोसेंट्रिज्म, विच इज़ द बिलीफ दैट मीनिंग इज सेंटर्ड ऑन अ ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड. मतलब लोगोस, इसेंस या सेंटर पे हम लोग ध्यान देते हैं. वी कीप ऑन फाइंडिंग दैट वन सेंटर maybe, and we believe that answers lie with the God. उस चीज़ को ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड कहते हैं. So this belief that meaning is centered on a transcendental signified, something absolutely present. इस चीज़ को इन्होंने क्रिटिक किया. But if every center is just another sign, then there is no transcendental signified. Everything is part of a chain of signifiers. मेन तो इनको यही खान था ना. स्ट्रक्चरलिज्म में सिग्निफायर और सिग्निफाइड की बात होती है. सिग्निफायर क्या है? कोई भी वर्ड, कोई साउंड, कोई जेस्चर, जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है. सिग्निफाइड क्या है? उस पर्टिकुलर वर्ड से या उस फोटो से, उस साउंड से आपके दिमाग ने क्या मतलब निकाला. द कॉन्सेप्ट दैट इज फॉर्म्ड इन योर ब्रेन इज सिग्निफाइड. लेकिन जब हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जाते हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया. उन्होंने कहा दैट वी आर नॉट एबल टू रीच द सिग्निफाइड, ऑल वी गेट इज सिग्निफायर्स. हाउ? लेट्स से आई गिव यू अ सिग्निफायर. व्हाट इज अ कैट? एंड यू से a cat is an animal. But then I have another question for you. I say, what is an animal? I don't know. I don't know the language, let's say. So cat, signifier. You try to give me a signified. It's an animal. But I don't know what is an animal. So I give you another signifier. What is an animal? मेरे तो कॉन्सेप्ट फॉर्म ही नहीं हो रहा दिमाग में, सिग्निफाइड आ ही नहीं रहा है. सो इफ एवरी सेंटर इज जस्ट अनदर साइन, there is no transcendental signified. Everything is a part of this chain of signifiers. तो यहाँ क्या हो रहा है? मीनिंग इज बीइंग डेफर्ड. लेट होता जा रहा है मीनिंग. डेफर्ड का मतलब लेट होना, डेफर होना. डिफर भी हो रहा है और डेफर भी हो रहा है, बिकॉज डिफर तो डिफरेंट तो है ही है, और डेफर हो रहा है मतलब लेट हो रहा है. और वही डेरिडा का कॉन्सेप्ट बनता है ऑफ डिफरेंस. ये उन्होंने अपने ऑफ ग्रामेटोलॉजी में बताया था. इट्स अ स्टडी ऑफ दैट, ऑफ ग्रामेटोलॉजी. After that, he comes to the example of Levi-Strauss and myth.
Derrida examines Levi-Strauss's The Raw and the Cooked and his concept of the opposition between nature and culture. Please remember, you can be asked, कौन से वर्क को इन्होंने एनालाइज किया है? लेवी-स्ट्रॉस के द लॉ एंड द कुक्ड, द रॉ एंड द कुक्ड, और उनका जो कॉन्सेप्ट था ऑफ द ऑपोजिशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर. सो लेवी-स्ट्रॉस uses these binaries to explain myth. लेवी-स्ट्रॉस का मेन काम यही था एंथ्रोपोलॉजी में. किनशिप की उन्होंने बात की है, मिथ्स की बात की है. तो लेवी-स्ट्रॉस ने इन बाइनरीज को यूज़ किया मिथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए. लेकिन डेरिडा शोज दैट ये जो ऑपोजिशंस हैं ये स्टेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द इंसेस्ट प्रोहिबिशन, लेवी-स्ट्रॉस कॉल्स इट बोथ नेचुरल एंड कल्चरल. यूनिवर्सल भी है और लॉ भी है. जो हम इंसेस्ट को प्रोहिबिट करते हैं ना, incest, brother sister can't have sex with each other, it's prohibited. Incest is prohibited. It's natural also, it's universal also, it's a law. It cannot belong to one side of the binaries, thus it deconstructs the opposition. This shows how even structuralism relies on concepts that are internally unstable, because it cannot belong to one side of the binary. फिर इन्होंने बात की है ब्राइकलियर और इंजीनियर की. ब्राइकलियर लेवी-स्ट्रॉस ने भी बात की है, डेरिडा ने भी बात की है, प्लीज़ रिमेंबर. सो लेवी-स्ट्रॉस डिस्क्राइब करते हैं ब्राइकलियर को, विच इज़ जैसे हम DIYs करते हैं ना, डू इट योर सेल्फ से हम लोग अपनी अलग अलग चीज़ें, आपके पास कोई है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उनको लोगे और कुछ नया क्रिएट करोगे, उसको हम ब्राइकलियर कहते हैं. द हैंडी मैन और टिंकरर हु यूजेज वट एवर मटीरियल्स आर एट हैंड versus the engineer who builds from the first principles. Again इन्होंने ये दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया है. अब डेरिडा कहते हैं ब्राइकलियर इज़ व्हाट वी आर ऑल. वी आर, we use existing signs, tools, concepts. The idea of a pure engineer, someone who creates from nothing, is a myth. The supposed origin or pure beginning does not exist. वो exist ही नहीं करती है. What is this pure? आप कोई तो चीज़ लोगे ना किसी चीज़ को बनाने के लिए. Therefore, all knowledge is bricolage, patchwork है, constructed है, provisional है. Then we have the two interpretations of structure and play. Last में Derrida identifies two attitudes towards the new openness. The traditional one, which is nostalgic for a center, seeking origins, order and presence. And then we have the new one, celebrating free play, difference, absence and movement. So he aligns himself with the second one, new one के साथ align करता है. Traditional वाला कौन सा है? जो nostalgic है सेंटर के लिए, अभी भी ढूंढ रहे हैं origin को, presence को, order को. नया one है जो celebrate कर रहा है इस openness को, इस ambiguity को, फ्री प्ले को, डिफरेंसेस को, एब्सेंस को. ये अपने आप को दूसरे वाले के साथ अलाइन करते हैं, बट विद आयरनी एंड अवेयरनेस ऑफ इट्स डिफिकल्टी. जॉयस एफर्मेशन ऑफ प्ले रादर देन मोर्निंग फॉर द लॉस्ट सेंटर. ठीक है, तो ये कुछ मैंने कॉन्सेप्ट जो इसमें आते हैं वो लिखे हुए हैं. यू कैन गो थ्रू इट वंस. What is transcendental signified? Final meaning or origin assumed to exist beyond signification. डिफरेंस क्या होता है, ब्राइकलियर और इंजीनियर क्या है, सप्लीमेंट क्या है. जब हम मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की बात करते हैं तो वो बात करते हैं सप्लीमेंट की, कि राइटिंग बिकम्स अ सप्लीमेंट, एन एक्स्ट्रा, कि अगर प्रेजेंस नहीं है किसी स्पीकर की, चलो हम राइटिंग से काम चला लेंगे, लाइक दैट. लोगोसेंट्रिज्म, डीकंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसी के बाद मैंने इन्हीं चीज़ों को दोबारा से थोड़े और एकदम जो ऐसे में लिखा हुआ है उससे लेके डिटेल्ड समरी एक दी हुई है. लेट्स जस्ट गो थ्रू इट वंस, बिकॉज अब आपको एक बार समझ में आ गया होगा. रिविजन ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो डेरिडा सबसे पहले शुरू करते हैं बाय स्पीकिंग ऑफ अ पॉसिबल इवेंट दैट हैज़ अकर इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर. आई जस्ट वॉन्ट टू गो वंस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट. या Perhaps something has occurred in the history of the concept of structure that could be called an event if this loaded word did not entail a meaning, which it is precisely the function of structural or structuralist.
thought to reduce or to suspect. Let us speak of an event, nevertheless, and let us use quotation marks to serve as a precaution. What would this event be then? Its exterior form would be that of a rupture and a redoubting. ठीक है? Let me come back to the next one. मतलब अपना तो वही बात है कि इन्होंने स्टार्ट किया है, एक पॉसिबल इवेंट की ये बात शुरू करते हैं कि शायद हिस्ट्री में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिससे कुछ तो चेंज हुआ है. ओके, सो दिस इवेंट, ये कहते हैं ये एक रप्चर है, एक ब्रेक है इन हाउ वी हैव ट्रेडिशनली थॉट ऑफ अ स्ट्रक्चर जो एक कोहेरेंट था, ऑर्डर था, अब उसमें एक रप्चर आ गया और अब हम उस स्ट्रक्चर को वैसे नहीं देखते हैं. सो फॉर सेंचुरीज एवरी नोशन ऑफ स्ट्रक्चर प्री सपोज अ सेंटर, अ फिक्स्ड पॉइंट दैट ऑर्गेनाइजर्स balances and limits the play of its parts. This center was thought to ground the structure and provide stability. अब डेरिडा पूछते हैं what happens when the center itself is questioned. ये essay जो है वही aim करता है to think about the structure of the structure. Not just how things are structured, but how the very idea of structure functions. Then the paradox of the center. Center gives coherence to a structure. है ना, एक सेंटर हो तो एक ऑर्डर मिलता है स्ट्रक्चर को, बट is itself outside the play of the elements. The center organizes and yet escapes structural laws. It limits movement while being itself immobile. This is a paradox कि सेंटर जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है उसके सिस्टम के. Because the center arrests play, it guarantees meaning and order. सेंटर को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, where you go to find that meaning of everything. जैसे एक बुक है, हम लोग पढ़ते हैं ना रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, कि बुक का एक कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, एक सेंटर नहीं है. क्यों? बिकॉज सेंटर को जब अलग अलग रीडर्स पढ़ रहे हैं तो हम सबका वो अलग आएगा. एंड दैट इज हाउ वी आर decentering it. Western thought, Derrida argues, has always needed this illusion of a center. क्योंकि एक satisfaction देता है ना वो, एक order की, एक coherence की. So it satisfies the metaphysical need for stability and origin. The substitution of centers in Western metaphysics, Derrida traces a history of how Western philosophy has substituted one center for another. God, being, substance, essence, truth, man, consciousness, etc. ये सारी चीज़ें जो हैं, this is not deconstruction, this is not destruction of structure. Please remember, deconstruction or decentering doesn't mean you are destructing something. This is a repetition of structurality, the constant replacement of one fixed point with another. So in every age, there was always a central term that guaranteed truth, origin and presence. है ना, वो जो पुराने फिल्म्स आप इमेजिन करो जिनमें सब कुछ दे दिया होता था, सब कुछ था, प्रेजेंट था, आप सेटिस्फाइड थे कि चलो जी हैप्पी एंडिंग हो गई, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ एक थीम थी इसमें, वो हो गया. What has never been done, says Derrida, is to think the absence of the center, to think structure itself as decentered. अगर स्ट्रक्चर ही डिसेंटर्ड हो, स्ट्रक्चर ही स्टेबल ना हो तो क्या. और आई में ना, जैसे वो फिल्म्स हुआ करती थी, उन पे अलग तरह का स्टडीज़ भी आया है, उसको भी डीकंस्ट्रक्ट किया है लोगों ने टू फाइंड आउट कि अगर आप लेट्स से एक ऐसी फिल्म आपने बनाई है जिसमें आप बड़ा बोल रहे हो कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जी और इसमें तो हम फेमिनिज्म दिखा रहे हैं. देयर हैव बीन स्कॉलर्स हु हैव कम एंड डीकंस्ट्रक्टेड दोज फिल्म्स टू show that okay, they also in one point or another scene are promoting patriarchy. So then he talks about the rupture.
the discovery of structurality. The rupture comes when people begin to think not only of structures but structure कैसे बना, structure का क्या structurality है, the network of differences and relations within them. So once we acknowledge that the center is not fixed, पूरा जो सिस्टम है वो खुल जाता है, फ्री प्ले, अब करो जो करना है इसके साथ. So the structurality of structure becomes visible only when the center is no longer an absolute point of reference. एक point of reference खत्म हो जाता है वहाँ पे, सेंटर नहीं रहे अब एक रेफरेंस पॉइंट, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, यू आर फ्री. So this is the moment of decentering, when we realize that the so-called center is itself part of the play of differences. The opening of a free play, Derrida introduces this idea of free play. When the center has no longer, the center no longer anchors meaning. Every element in a structure, it becomes free. You can substitute it, you can displace it, you can relate differently, whatever, do whatever with it. Think whatever you want to think about it. So the system becomes dynamic, fluid and open. The absence of transcendental signified, that is, कोई ultimate meaning नहीं है beyond the system, that creates endless movement of signifiers. So meaning is no longer derived from an origin, but differences, आपका मेरा differences, और जो डिफरेंस हो रहा है, डिले हो रहा है मीनिंग में, क्योंकि सिग्निफायर्स पे सिग्निफायर्स मिले जा रहे हैं. दिस इज व्हाट डेरिडा लेटर कॉल्स डिफरेंस. सो प्ले is not disorder, it is the space of possibility created by the lack of a fixed origin. So from center to play, the crisis of representation, Western thought, Derrida कहते हैं, has been a history, is a history of the metaphysics of presence, belief in a stable origin or belief in the presence that guarantees truth. कि अगर कोई present है वहाँ पे, speaker है कोई, तो वो truth ही दे रहा होगा. The notion of the sign was also caught in this logic. The sign was meant to represent a present meaning or truth, है ना? लेकिन अगर सेंटर ही चला गया तो फिर साइन का क्या मतलब है? साइन no longer points you to that final meaning, right? एक आपको आवाज़ आई, जैसे हम लोग घर पे बैठे हैं एक दिन और हमें पटाखे की आवाज़ आई. हमने क्या सोचा? हमने सोचा ये तो किसी की शादी होगी. थोड़ी देर के बाद हमने रियलाइज़ किया यार शादियों का तो सीज़न है नहीं, दिवाली तो है नहीं और दिवाली भी नहीं है, शादियों का सीज़न भी नहीं है, तो ये कौन से, और एक के बाद एक चल रहा है, कोई क्रिकेट मैच भी नहीं हुआ है. एंड देन वी रियलाइज्ड, oh my god, these are the drones that are being tackled. I mean, we are under war. When I was in Jammu, and you all remember that Jammu and Jammu Kashmir, Pakistan का जो tension was at its height. So it did not point us towards the final meaning because it was not truth anyway. So center is gone, sign no longer is fixed, meaning is not produced. It only refers to another sign. और हमें क्या साइन आया? दिवाली नो, शादियाँ नो, क्रिकेट मैच नो, so many more signifiers, an infinite chain of signifiers. Hence meaning is not present, but it's constantly deferred. It's never complete. It's always to come. So this destroys the comfort of that metaphysics, but it opens the possibility of new thinking, an affirmation of play. And then Claude Lévi-Strauss का स्टडी उन्होंने लिया, एंथ्रोपोलॉजी जिनका एग्जाम्पलीफाई करता है स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड्स को. लेवी-स्ट्रॉस मिथ्स को पढ़ते हैं, सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं थ्रू बाइनरी ऑपोजिशंस, नेचर, कल्चर, रॉ, कुक्ड, स्पीच, राइटिंग एट्सेट्रा. Derrida notes that Lévi-Strauss uses both uses and questions structuralist logic. यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन उसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं. So he applies structural analysis to culture, but he denies that culture has a single origin. अप्लाई भी कर रहे हैं
स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस कल्चर पे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कल्चर का तो एक ओरिजिन होता ही नहीं है, वो तो पूरा बन रहा है, अभी भी चल रहा है. फॉर इंसेंस द इंसेस्ट प्रोहिबिशन कैनॉट बी सिंपली क्लासिफाइड एज नेचुरल, है ना. हम नहीं कह सकते ये तो नेचुरल है कि भाई बहन नहीं आपस में हो सकते साथ में. क्यों? क्योंकि इट बिलोंग्स टू बोथ रियल्म्स, दस अंडरमाइनिंग द बाइनरी. तो वहाँ पे वो क्वेश्चन भी हो गया, अप्लाई भी हुआ. सो दिस अनडिसाइडेबिलिटी शोज दैट structural oppositions are not stable, they collapse under their own logic. Okay, so next is the myth of the engineer and the reality of Bricolier. तो वही लेवी स्ट्रॉस दो मेन फिगर्स को कंपेयर करते हैं, एक इंजीनियर और एक ब्राइकोलियर. इंजीनियर जो बिल्ड करता है एक प्लान को उसके ओरिजिन से बिल्कुल प्योर, और ब्राइकोलियर जो बिल्ड करता है जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके साथ. डेरिडा इस मेटाफर को पढ़ते हैं और डिकंस्ट्रक्ट करते हैं. इंजीनियर प्योर ओरिजिन, क्रिएटर फ्रॉम नथिंग, ये एक मिथ है, वो ये कहते हैं, क्योंकि रियलिटी में हम सब ब्राइकोलियर्स ही हैं. देन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ डिस्कोर्स इन द ह्यूमन साइंसेज, जो लास्ट वाला इनका है. सो द ह्यूमन साइंसेज जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी आर देमसेल्व्स स्ट्रक्चर्ड डिस्कोर्सेस. स्ट्रक्चर्ड डिस्कोर्सेज है ये, दे आर पार्ट ऑफ वॉट दे एनालाइज. तो डेरिडा कहते हैं कि लेवी स्ट्रॉस दो क्रिटिकल ऑफ मेटाफिजिक्स स्टिल रिमेन्स विद इन इट बिकॉज ही कैनॉट एस्केप द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रक्चर. सो दी जो डिस्कोर्स है ह्यूमन साइंसेस का, ये भी एक पैराडॉक्स में फंसा हुआ है. एक तो इट इज सीकिंग टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स फ्रॉम आउटसाइड, बट देर इज नो आउटसाइड. We always speak within the language, within play. हम लोग हैं ही नहीं बाहर. Everything is in the language after all. Two interpretations हैं of structure, sign and play की. एक तो डेरिडा कंक्लूड करते हैं with two possible interpretations of the decentering situation. पहला, the first interpretation continues to search for order, origin, presence, and it attempts to ground meaning again, to mourn the loss of the center. नॉस्टैल्जिक रिएक्शन दे हम लोग कि चला गया, ऑर्डर नहीं है अब. द डिज़ायर टू रिटर्न दैट टू दैट मेटाफिजिक्स. और सेकेंड है द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ सेंटर एज अ कंडीशन ऑफ थॉट, सेलिब्रेटिंग द फ्री प्ले, डिफरेंस एंड इवेंट. मैं एक बहुत, मेरे दिमाग में जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है वो है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न का. मॉडर्निज्म जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद था, पोस्ट मॉडर्न जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया. Modernism is that both are fragmented, but the first one seeks order, origin, the presence of the space which was before the modern age. But postmodern age has this acceptance of everything, of this free play, of the existentialism. So it sees meaning as produced in movement and relation, not in the fixed origin. So this is the affirmative approach, a joyous acceptance of the openness of meaning. And Derrida अपने आप को इस वाले के साथ associate करता है. So this essay ends with a subtle paradox. Derrida both affirms and questions his own position. He acknowledges that even this new thinking of free play is still spoken within the old language of metaphysics. Yet, awareness of this limitation itself marks new beginning. The decentering of structure is not destruction, but the opening of thought. Philosophy, language, criticism now begin to think without a center, without a presence, without end. So very different, very complicated also. It's not easy without a center, right? E-terms. And the core thesis is that there is no center, there is no absolute origin, there is no transcendental signified, only endless play of signifiers within a decentered structure. I've tried to explain it as best as I can. I hope it is clear. Give your thoughts in the comment section. Thank you. See you in the next one.